Good morning, students. I am Dr. Indermal Goyal. Today in this video, we will discuss about accounting entries on issue of debentures. कंपनी की बुक्स में ऋण पत्रों के निर्गमन के लिए क्या प्रविष्टियां होती हैं, इसके बारे में आज हम विद एग्जाम्पल डिस्कशन करेंगे. And it is also important part of your syllabus. Issue of debentures. You know, debenture is a long-term source of acquiring finance for a public company, and it is a part of debt capital. And when a public company want to issue debenture, it issue prospectus, and prospectus is a general invitation to the public as a whole, and investors, prospective investors who have surplus money, who have saving and who want to invest their valuable saving to generate more income, then they go through the prospectus issued by the company. The rate of interest payable on debenture is attractive, then they will definitely take the decision to invest their saving into debentures of the company. Debentures are generally issued to meet out the burning financial requirement of the company. That is why in most of the cases, issue price of the debenture will be received by the company in lumps. It may be taken by the company in installment to build up the trust and confidence of the company if there is a problem of liquidity in the market, but generally entire face value of debenture is received by the company with application money. So it will be called as a payment in lump sum. जो बातें हमारे इशू ऑफ शेयर्स में रिलेटेड है लागू होती हैं, वो इशू और डिबेंचर में भी लागू होगी. कौन सी बातें? Issue of share at par and at premium, or issue of debenture may be at par and issue at discount. There may be over subscription or under subscription of the share. The same situation may be in case of issue of debenture. Share may be issued for consideration of cash, and debenture may also be issued for consideration in cash and for consideration other than cash. Interest is payable by the company to every debenture holder at a certain rate on half yearly or on annual basis after deducting TDS. तो आज हम issue और debenture से related entries करेंगे. तो in case of a public company, whenever the share or debenture are issued, the entire application money is kept deposited with the banker of the company. It can be used by the company office bearer only after allotment of the debentures. So till the allotment of the debenture takes place, application money of the debentures will be kept deposited with the company's bank account. When the debenture are issued at premium, then the amount to be received will be face value of debenture plus premium. When the debenture are issued at par, then the face value will be received with application money, and if the debenture are to be issued at discount, then the application money or the amount to be received will be equal to face value minus discount in case of lump sum payment. And in case of payment in installment, both discount and premium will be adjusted with allotment money as we have done in case of shares. तो एक कंपनी के ऋण पत्र के निर्गमन के समय उसका जो अंकित मूल्य के बराबर राशि है वो भी पूरा एप्लीकेशन के साथ मांगी जा सकती है. तो ऋण पत्रों का निर्गमन और एक मुश्त भुगतान कहलाएगा. यदि ऋण पत्रों का अंकित मूल्य कंपनी के द्वारा 3 या 4 किस्तों में लिया जाता है, 2 किस्त में लिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो है हमारी जितना इंस्टॉलमेंट है, 4 इंस्टॉलमेंट है तो 8 एंट्री होगी, 3 इंस्टॉलमेंट है तो 6 एंट्री होगी.
2 इंस्टॉलमेंट है तो 4 एंट्री बनेगी, और प्रीमियम और डिस्काउंट का एडजस्टमेंट हमेशा अलॉटमेंट ड्यू के साथ किया जाएगा, राइट। तो अब हम एंट्री कर रहे हैं इशू ऑफ डिबेंचर एंड द पेमेंट इज इन लम्प सम, राइट। तो सपोज एक्स कंपनी इशू ऑफ डिबेंचर, अकाउंटिंग एंट्री, अकाउंटिंग एंट्रीज, और इसके लिए हम एक एग्जांपल कर रहे हैं, क्या, एक्स कंपनी लिमिटेड issued 5,000 12% debentures of rupees 100 each. Give journal entries, if debentures are issued at par, debenture are issued at par A, B issued at 10% premium, C issued at 5% discount, right? And whole amount is receivable, whole amount is receivable with application money, with application. तो यहां देखिए एक कंपनी ने 5,000 डिबेंचर 5,000 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच इशू करा है, और यहाँ तीनों बात है, इशू एट पार किया है तब कंपनी को कितना रुपया मिलेगा, और बोला वो अमाउंट इज रिसीवेबल विद एप्लीकेशन मनी, मतलब ये इशू ऑफ डिबेंचर एंड अमाउंट इज पेबल इन लम्प, क्योंकि ऋण पत्रों पर निर्गमन के समय जो उसका मूल्य है वो एक मुश्त भी प्राप्त किया जा सकता है कंपनी के द्वारा, और 3 या 4 छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट में भी हो सकता है। और जब इंस्टॉलमेंट में होगा तो द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट विल बी कॉल्ड एज एप्लीकेशन मनी, सेकंड इंस्टॉलमेंट विल बी कॉल्ड एज अलॉटमेंट मनी, एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट विल बी कॉल्ड एज फर्स्ट कॉल एंड देन सेकंड कॉल। तो यहाँ ये हमारा क्वेश्चन है, इसकी सहायता से हम अकाउंटिंग एंट्रीज करेंगे। तो इट्स ए क्वेश्चन रिलेटेड टू पेमेंट ऑफ डिबेंचर amount in lump sum and issue at par, issue at premium and issue at discount। तो अब देखिए जब ऋण पत्रों पर निर्गमन की सारी राशि, निर्गमन का पूरा मूल्य फेस वैल्यू के साथ वो एक मुश्त चुकाना है, तो फिर ऐसी स्थिति में एक ही इंस्टॉलमेंट में सारा पैसा आ रहा है, एक मुश्त सारा पैसा आ रहा है, तो 2 ही एंट्री बनेगी। पहली एंट्री एप्लीकेशन मनी मिलने की, और दूसरी एंट्री जो है वो हमारा एप्लीकेशन मनी को डिबेंचर अलॉट करके डिबेंचर अकाउंट में मनी को ट्रांसफर, राइट। तो फर्स्ट एंट्री, तो यहाँ देखिए पहले हमने इशू एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट किया है। तो हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय द कंपनी, अमाउंट टू बी रिसीव्ड बाय कंपनी, ये मैं एक वर्किंग नोट बना रहा हूं, अमाउंट टू बी रिसीव्ड बाय कंपनी। तो अब देखिए फेस वैल्यू कितनी होगी, डिबेंचर की फेस वैल्यू होगी 5,000 डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच है ना, तो टोटल अमाउंट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर इज ₹5 lakhs, ठीक है। अब इशू एट पार भी है, एट प्रीमियम भी और एट डिस्काउंट है, तो इशू
एट पार हो तब कितना मिलेगा, एट प्रीमियम हो तब कितना मिलेगा, और एट डिस्काउंट अगर इशू किया जाए तब कितना रुपए मिलेगा। तो आप देखिए, अगर कंपनी का एट पार है तो 5 लाख रुपए के डिबेंचर इशू करें तो कोई 5 लाख रुपया ही मिलेगा, राइट। अगर प्रीमियम पे इशू कराए तो क्या होगा, फेस वैल्यू होगी 5 लाख रुपए प्लस प्रीमियम कितना परसेंट है, यू सी 10% प्रीमियम है तो प्लस 10% हो जाएगा 5 लाख रुपए का, 5 लाख का 10% 50,000। टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी इज रुपीज 5,50,000। और अगर एक कंपनी अपने 5 लाख रुपए के डिबेंचर 5% डिस्काउंट पे जारी करती है तो माइनस हो जाएगा 5%, 25,000। तो बताओ कंपनी को कितना मिलेगा रुपया, इट विल बी 4,75,000। तो एट पार इशू है ना, नो प्रीमियम नो डिस्काउंट, पूरे 5 लाख रुपया मिलेगा। ये हमारा इसका वर्किंग मोड है। इशू एट पार हो तब कितना मिलेगा, इशू एट प्रीमियम है तब कितना मिलेगा। नेट अमाउंट टू रिसीव, तो देखिए कंपनी issued 5,012% डिबेंचर of a trade execute journal entry if debenture are issued at par, issued at 10% premium, issued at 5% discount। अगर कोई कंपनी अपने डिबेंचर प्रीमियम पे इशू करती है तो कंपनी को फायदा होगा, कंपनी को ज्यादा पैसे मिलेंगे। और अगर एक कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू करती है तो कंपनी को लॉस होगा, लॉस को डेबिट करते हैं, प्रीमियम गेन होता है तो क्रेडिट करेंगे, राइट। अब हमारे यहाँ इसका अकाउंटिंग एंट्री जो ये है, ये इशू एट पार, तो इसमें क्या एंट्री बनेगी, ये ए हो जाएगा इशू एट पार, बी इशू एट प्रीमियम और सी इशू एट डिस्काउंट। तो मैं अकाउंटिंग एंट्री बना रहा हूं इन केस ऑफ ए, तो जर्नल ऑफ क्या होगा, जर्नल ऑफ एक्स कंपनी लिमिटेड में हम एंट्री करेंगे। और अब इस क्वेश्चन को आप लिखने के बाद आप भी अपना पेन और कॉपी हाथ में रखिए और जो मैं एंट्री कर रहा हूँ लिखिए, क्योंकि मैं इसको वापस मिटाऊंगा, क्योंकि 3 केसेज हैं और तीनों केसेज के लिए अलग अलग एंट्री बनेगी, अमाउंट अलग आएगा और एंट्री में भी स्लाइड चेंज होगा, राइट। तो जर्नल का फॉर्मेट आप बनाए, डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट, एक पर्टिकुलर LF अमाउंट रुपीज, डेबिट एंड क्रेडिट, राइट। तो ये आप बना जर्नल में एंट्री करेंगे, कंपनी की बुक में एंट्री हो रही है रिगार्डिंग इशू ऑफ डिबेंचर, एक पर्टिकुलर LF अमाउंट रुपीज है वो आपका डेबिट एंड क्रेडिट। नाउ फर्स्ट एंट्री फॉर एप्लीकेशन मनी इन केस ऑफ इशू एट पार, 5 लाख का डिबेंचर अगर कंपनी ने इशू करा, 5,000 डिबेंचर 100 रुपए वाले, तो 5,000 × 100 5 लाख हो गए। इशू एट पार का मतलब है सम मूल्य पर निर्गमन किया और यहाँ पेमेंट भी इन लंप सम है, तो फिर ना पूरे रुपए एक साथ मिलेगा। तो कंपनी बुक में पहली एंट्री होगी वो होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो यहाँ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों साथ साथ लिखा जाएगा। Being application money received, ये A में एंट्री कर रहा हूं, और A when the debenture are issued at par, being 12% debenture application money received, ये है एप्लीकेशन मनी रिसीव, कितना रुपए मिलेगा 5 लाख। तो ये हमारी एंट्री हुई 5 लाख, ये पहली एंट्री। और यही मानेंगे unless otherwise given it is assumed that the number of debenture applied is exactly equal to the number of debenture issued and offered to the public। या कुछ एक्स्ट्रा बात नहीं दिया हुआ है, हम ये मान के चलते हैं कि जितना नंबर ऑफ डिबेंचर इशू करा उसके बराबर है वो कंपनी को जो है एप्लीकेशन मिल गई है। ये फर्स्ट एंट्री हुई। अब सेकंड एंट्री है वो डिबेंचर का अलॉटमेंट करने पर।
जब आप डिबेंचर एप्लीकेशन पे अलॉटमेंट करेंगे तो वो कंपनी का डिबेंचर अमाउंट बन जाएगी, और ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट या आफ्टर द डेट ऑफ अलॉटमेंट द ऑफिस बियरर और द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी विल गेट द राइट टू यूज डिबेंचर एप्लीकेशन मनी फॉर द कंपनीज पर्पजेज फॉर द प्रोजेक्ट ऑफ द कंपनी। तो हमारी सेकेंड एंट्री बनेगी 12%। अब देखिए 12% हर बार लगाना है क्योंकि डिबेंचर का नाम ही 12% डिबेंचर है, एंड दिस 12% रेफर्स टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल बाय द कंपनी ऑन डिबेंचर्स, हाफ ईयरली बेसिस मे बी ऑन एनुअल बेसिस। तो और जब हमने एक इंस्टॉलमेंट में सारा पैसा लिया है तो फिर क्या होता है, वो एक साथ आ जाता है सारा, और एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट दोनों एक साथ खोले जाते हैं। अगर इंस्टॉलमेंट में होगा तो एप्लीकेशन का पैसे ओनली एप्लीकेशन ही आएगी, और अलॉटमेंट की एंट्री अलग ड्यू करने की और रिसीव करने की करेंगे, फिर फर्स्ट कॉल की अलग होगी, जैसा हमने शेयर में किया था वैसे ही यहाँ करेंगे। लेकिन यहाँ लम सम पेमेंट की बात है, इशू एट पार ए वाला पार्ट की मैं एंट्री कर रहा हूँ, तो दो एंट्री होगी, एक एप्लीकेशन मनी मिलने की, दूसरा अलॉटमेंट पर जो एप्लीकेशन मनी कंपनी का डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर होगी। तो हमारी एंट्री है सेकंड 12% डिबेंचर डीबी लिखा है, ठीक है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट, ये रुपीज 5 लाख, 5 लाख की एप्लीकेशन मनी आएगी और 5 लाख पूरी है ना वो कंपनी के डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर हो गई है। नरेशन हो जाएगा बी डिबेंचर 12% डिबेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, कहाँ ट्रांसफर हुई, डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर कैपिटल बन गई, डेब्ट कैपिटल बन गई कंपनी। तो ये ए वाला सिचुएशन है। क्वेश्चन हमारा ये है, एक ही क्वेश्चन में तीन बातें हैं, इशू ऑफ डिबेंचर एट पार, इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम एंड इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट। तो ये आपको एंट्री नोट कर लीजिए, फिर मैं इनको मिटाऊंगा और फिर बी पार्ट में हम एंट्री करेंगे। कौन सी, इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम। अगर एक कंपनी अपने 5000 डिबेंचर 100 रुपए वाले 10% प्रीमियम पे इशू करती है तो कंपनी को ज्यादा पैसा मिलेगा। वो प्रीमियम कितना मिलेगा, 5 लाख रुपीज हो गया फेस वैल्यू, डिबेंचर की फेस वैल्यू 5 लाख प्लस 10% प्रीमियम, 5 लाख का 10% 50,000, एप्लीकेशन मनी विल बी रिसीव्ड इज 5,50,000। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर दो एंट्री बनेगी। एंड यू नो प्रीमियम रिसीव्ड बाय द कंपनी ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज ए प्रॉफिट ऑफ कैपिटल नेचर एंड इट विल बी ट्रांसफर्ड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, and security premium received by the company is a restricted reserve and it can be used only for specific purposes which are mentioned in the Companies Act 2013। 2 नंबर का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में कि कंपनी अपने सिक्योरिटी प्रीमियम का जो इश्यू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर भी प्राप्त करती है उसका उपयोग कहाँ कर सकती है। व्हाट आर वेरियस यूज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड बाय द कंपनी। तो उसके कौन कौन से यूज है, पहला टू इशू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, यानी कि एक कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको अगर फ्री में बोनस शेयर दिया जाए कंपनी तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम को कन्वर्ट करके फुल्ली पेड बोनस शेयर इशू कर सकती है। दूसरा टू राइट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, अगर एक कंपनी ने अपने कोई शेयर एंड डिबेंचर डिस्काउंट पे कोई इशू करे हुए पास्ट ईयर में, उसका जो हमारा एक्यूमुलेटेड लॉस है तो वो प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर में से राइट ऑफ कर सकती है। थर्ड है टू राइट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के बाद टू राइट ऑफ कमीशन, अंडरराइटिंग कमीशन ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, कंपनी के जो अंडरराइटिंग कमीशन है उसको राइट ऑफ करने में किया जा सकता है। फोर्थ है टू प्रोवाइड प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, अगर एक कंपनी जिसने प्रेफरेंस शेयर इशू कर रखे हैं और वो उनका रिडम्पशन प्रीमियम पे करना चाहती है तो फिर वो प्रीमियम कहाँ से अरेंज करेगी, दैट कैन बी टेकन फ्रॉम द प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर। तो अमाउंट रिसीव्ड
as premium on issue of share can be used to provide premium payable on redemption of preference share. और पांचवा का यूज है, फिफ्थ यूज है to create CRR, to create capital redemption reserve account at the time of buyback of equity share. Sometime a public company want to buy back its own equity share, तो उसके लिए उसको कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का शॉर्ट फॉर्म है CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, पूंजी शोधन कोष। तो दैट्स CRR कैन बी क्रिएटेड आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल इन सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो ये हमारे यूज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि एक कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जो पैसा उसका कहाँ कहाँ उपयोग कर सकती है, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, अब जो हमारा मैं सेकंड पार्ट इसका कर रहा हूँ, अगर एक कंपनी 5000 डिवेंचर 100 रुपये वाले 10% प्रीमियम पे जारी करती है तो कंपनी को कितना रुपये मिलेगा? 5,50,000। ये वर्किंग नोट मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ, 2 एंट्री होगी। और क्या होगी एंट्री? उसमें आप देखो ये जो एप्लीकेशन बनी है ना, जो 5 लाख रुपए थी वो 5,50,000 हो जाएगी। और क्या चीज जाएगा? पूरे 5,50,000 रुपए कंपनी को एप्लीकेशन के साथ मिलेंगे। तो मेरा लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। पहली एंट्री 5,50,000 से हो जाएगी और दूसरी एंट्री में आपको ये हिसाब बताना पड़ेगा कि ये जो 5,50,000 आपको मिले वो कहाँ ट्रांसफर किए। तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट 5,50,000। When the debenture are issued at premium and the amount is receivable in lump sum, then the total amount application money will be 5,50,000 और 5,50,000 में से क्या होगा? वापस सेकंड एंट्री at the time of allotment of debenture the entry will be 12% debenture application and allotment account debit 5,50,000। क्योंकि जितना एप्लीकेशन अलॉटमेंट में पैसा आया क्रेडिट में किया उतना ही वापस पूरा डेबिट करना, और जो डिवेंचर की अमाउंट है फेस वैल्यू की वो डिवेंचर अकाउंट में जाएगी और जो प्रीमियम कंपनी को मिला है वो सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा। तो हमारी एंट्री वाली कुछ इस तरह से 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट फाइल है, जो 12% डिवेंचर अकाउंट सॉरी डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5,50,000 टू 12% डिवेंचर अकाउंट होगा हमारा 5,00,000 एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ये ऐड हो जाएगा हमारा टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ये 50,000। ये सेगमेंट बी एप्लीकेशन मनी डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, ये बी के लिए हमारी ये जो 2 एंट्री हुई है। नाउ दिस इज फॉर बी। बी पार्ट क्या है? इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम। तो 5,50,000 मिला तो 2 एंट्री बनेगी क्योंकि पेमेंट इन लम सम की बात है। जब डिवेंचर का पैसा एक मुश्त प्राप्त हो रहा है तो फिर 2 एंट्री बनी। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 5,50,000 और फिर दूसरी एंट्री 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट 5,00,000 रुपये एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 50,000। तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट में आ गया क्योंकि प्रॉफिट एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कंपनी का एक पूंजीगत प्रकृति का लाभ है, एक विशिष्ट प्रकृति का लाभ है, एक प्रतिबंधित संचय है। इसका उपयोग कंपनी अधिनियम 2013 में जो दिए गए प्रावधान है उसके अनुसार ही किया जा सकता है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम में उपलब्ध राशि का उपयोग एक कंपनी कहाँ कर सकती है? पहला जो है डिस्काउंट को राइट ऑफ करने में, डिस्काउंट ऑन इशू अंशों और ऋण पत्रों के निर्गमन पर जो कंपनी ने बट्टा दिया है उसका डिस्काउंट को राइट ऑफ करने में कर सकती है। कंपनी अपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने में कर सकती है। कंपनी है ना वो फुली पेड अप बोनस शेयर इशू करने में कर सकती है। और कंपनी इसको पूर्वाधिकार अधिमान अंशों के शोधन के समय जो प्रीमियम भुगतान करना है उस प्रीमियम की व्यवस्था करने में कर सकती है। और अगर एक कंपनी अपने समतांशों का पुनर्क्रय करती है तो उसके लिए जो पूंजी शोधन कोष बनाना पड़ता है उसका उपयोग सिक्योरिटी प्रीमियम में से किया जा सकता है। तो ये हमारे बी पार्ट की जो एंट्री थी और सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज है वो मैंने पहले इंग्लिश में बताया था, हिंदी में भी बता दिया ताकि ये हमारा जो वीडियो है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट के लिए यूजफुल हो जाए। राइट, अब हम इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कर रहे हैं, इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट्स।
अगर इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट, डिस्काउंट की रेट क्या है देखो, इशूड एट 5% डिस्काउंट। तो आप देखो अगर ये कंपनी अपने 5000 ऋण पत्र 100 रुपए वाले और 5% डिस्काउंट पे जारी करेगी तो कंपनी को कुल कितना रुपया वास्तव में मिलेगा एप्लीकेशन के साथ। तो आप देखिए 5000 × 100 5 लाख रुपए, उसमें से 5 लाख का 5% डिस्काउंट हो गया 25,000 रुपए। ये डिस्काउंट है ना, काट कर ही लोग पैसे देंगे। व्हेन द डिबेंचर आर इशूड एट डिस्काउंट the people will pay net amount after deducting the discount so as to avail the benefit of discount, and the company will actually receive only 4,75,000, but the debenture liability against the company will be of which 5 lakh। तो ये डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है वो कंपनी के लिए लॉस है। और वो कंपनी लॉस क्यों उठा रही है? क्योंकि कंपनी को डिबेंचर बेचना जरूरी है, पैसा मार्केट से उधार लेना जरूरी है, और डिबेंचर को खरीदने के लिए लोग तैयार नहीं है, कंपनी का मार्केट में लोगों का पास लिक्विडिटी नहीं है, तब एक कंपनी अपने डिबेंचर जो है वो बट्टे पर निर्गमित करती है। भले कंपनी को लॉस होता है, बट कंपनी को ये पता है कि अगर हम ये 25,000 का डिस्काउंट देंगे जो 4,75,000 रुपये आएगा, इससे कंपनी जो बिजनेस करेगी उसे 3-4 महीनों में 7-8 लाख रुपया हो जाएगा। 5 लाख का 7-8 लाख तो 2 लाख 3 लाख रुपए का कंपनी प्रॉफिट कमाने की अपेक्षा होती है, इसलिए वो डिस्काउंट पे भी डिबेंचर इशू करके पब्लिक से पैसा लेकर फिर अपने व्यापार को बढ़ाती है। तो ये उद्देश्य होता है, व्यापार अपार होता है, इसीलिए कहा जाता है। तो यहाँ अगर डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू किए जाएंगे तो 5% डिस्काउंट घटाने के बाद कंपनी को 4,75,000 रुपये मिलेंगे। तो इसमें से सी सिचुएशन में क्या एंट्री होगी वो मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पहले वाला ये मिटा दें आप, और दूसरा लिखे सेकंड सी पार्ट लिखेंगे, और इसकी एंट्री क्या होगी। अब आप देखिए 4,75,000 रुपये ही मिलेंगे, तो ये चेंज आ जाएगा यहाँ। प्रीमियम है वो हटा देता हूँ। So there will be slight change in the accounting entries. Now, what will be changed? पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट which 4,75,000। तो ये जो एंट्री तो वही रहेगी और अमाउंट हो जाएगा 4,75,000। 4,75,000। When the debenture are issued at 5% discount, 5% of 5 lakh rupees face value is rupees 25,000. Net received amount by the company is 4,75,000. Now second entry for allotment of debenture. तो एंट्री क्या बनेगी? 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होगा 4,75,000। और अब जो डिस्काउंट इशू कर रहा है तो डिस्काउंट अब कंपनी का लॉस है, तो हम यहाँ लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट पूरा आप लिख देंगे। टू 12% डिबेंचर रुपीज 5 lakhs हो जाएगा। Being 12% डिबेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर नरेशन यही रहेगा। तो when the debenture are issued at discount, the accounting entry will be bank account debit to debenture application, 12% debenture application and allotment account। 12% word जरूर लगाना है, it refers to the rate of interest payable by the company। तो 4,75,000 मिला, और अब जितना एप्लीकेशन मनी में हमने पैसा क्रेडिट किया, अब इसको एप्लीकेशन मनी का अकाउंट को बंद करेंगे। जब डिबेंचर का अलॉटमेंट हो जाएगा तो एप्लीकेशन का खाता तो बंद हो जाएगा, और वो एप्लीकेशन मनी पूरी कंपनी के डिबेंचर अकाउंट में चली जाएगी। तो एंट्री बनेगी 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 4,75,000। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 25,000। यहाँ डिस्काउंट को डेबिट करना क्योंकि ये कंपनी के लिए लॉस है, एंड लॉस इज ऑलवेज डेबिटेड एज पर द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। क्या रूल है नॉमिनल का? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। दीज आर द 3 फंडामेंटल रूल। हमारा अकाउंटिंग में 3 रूल है ना, पर्सनल का, रियल अकाउंट का, नॉमिनल अकाउंट का। ये रूल फंडामेंटल है, ये वर्ल्ड वाइड है, बिकॉज यू आर द स्टूडेंट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मीन्स डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, एंड डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज ए वर्ल्ड वाइड फिनोमेना।
When you have the knowledge of the basic concept and fundamentals of double entry system of accounting, you are fit to work in any part of the world, in any country of the world. So try to have fundamental, basic, conceptual knowledge of this subject. You will be very useful for the society and community. You will get chance to be appointed as an accountant, as a junior accountant, and then you will become a senior accountant after completion of your 4 or 5 years as a trainees in the commercial world. तो दो एंट्री बनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड दूसरा एंट्री 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर, राइट। तो ये तीनों सिचुएशन है, कौन सी? इश्यू ऑफ डिबेंचर एट पार, इश्यू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम, इश्यू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट, तीनों सिचुएशन। और अमाउंट इज रिसीव्ड इन लम्स, जब एक मुश्त भुगतान हो तब पूरा पैसा एक साथ मिल जाएगा। और द इशू इज नाइदर अंडर सब्सक्राइब नॉट ओवर सब्सक्राइब। तो ये सारी बातें ये हमारी एजम्पशन हो गई कि जब द नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इज नॉट गिवन, इट हैज बीन एज्यूम्ड दैट द नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इज एग्जैक्टली इक्वल टू द नंबर ऑफ शेयर ऑफर्ड टू द पब्लिक। सो दिस इज अबाउट issue of debenture at par, at premium and at discount, and the amount is received in lump sum, and issue is neither oversubscribed nor undersubscribed. So I think that you got the point. तो इसके साथ आप अपना बुक का एग्जाम्पल भी देखिए, वॉच दिस वीडियो completely and you please share this video to your friends and colleagues. जिन लोगों को पता नहीं है आप उनको ये बताएं कि आप इस वीडियो को देखकर अकाउंट्स को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। व्हेन यू विल सब्सक्राइब माय वीडियो देन सर्टेनली यू विल ऑटोमेटिकली गेट माय नेक्स्ट वीडियो। आई वोंट हैव टू गिव यू सेपरेट लिंक लेटर ऑन, राइट? थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।